सरहदी जिले फाजिलका की गल कर लीए तो सरहदी जिले दे नाल जिहड़ा बिल्कुल पाकिस्तान महज कुछ दूरी के उपर जिहड़ा पाकिस्तान लगता है। तो ऑपरेशन संदूर के दौरान सब तो भुगत भोगी जे इलाका की गल कर लीए तो सरहदी पिंडा जिहड़े इलाके के लोगों ने यह संताप झेलिया, जिहड़े जिथे उन्होंने घर छड्डने पे ने उत्थे वड्डी मार आर्थिक तौर पर भी जिहड़ी है इन्हां परिवारां नूं इन्हां घरां नूं पई है। पर अज भारत पाकिस्तान के मैच नूं लैके दो हिस्सों के अंदर लोग वटे हुए दिखाई दे रहे हैं। साडे नाल कुछ लोग स्थानक लोग मौजूद ने, की सोचते ने कि किस तरह देखते हो जी कि मैच हो रहा है, मैच नूं लैके की सोच है तुहाडी? बिल्कुल जी, असीं तां ये कहना चाहुंदे आ कि जिवें कि थोड़ा समा पहलां साडे उत्ते हमला किया गया, पाकिस्तान के वल्लों किया गया, टैररिज्म के वल्लों किया गया पहलगाम दे विच, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ। जे सरहदी इलाके फाजिलका की गल कर लीए या पिंडा की गल कर लीए तो किस तरह का संताप ऑपरेशन संदूर के दौरान ਰਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕੀਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨਾ ਚੱਕਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾ ਉਹ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਮੈਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਣਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੈਸੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਚੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਸੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? बिल्कुल जी, मैच भी क्यों हो? तुसी की सोचते हो, किस तरह देखते हो मैच हो रहा है, की सोचते हो? मेरे हिसाब ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਚ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਂਘਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਚ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਹੋਣ? ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਤੇ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਮਿਹਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਚ होना चाहिए या नहीं? ये चीजें तब होनी चाहिए जब दो कंट्रीज के रिलेशन आपस में बिल्कुल ठीक हो। जब तक रिलेशन ठीक नहीं है, अगर कोई दूसरा कंट्री किसी कंट्री के ऊपर टेररिज्म इस तरीके की एक्टिविटी करता है, तो आप क्या सोचते हैं कि ये सब चीजें करके हम क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि जब तक की रिलेशन नहीं सुधरते, या पाकिस्तान की जो आवाम है उससे हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को जरूर समझना चाहिए कि जिस तरीके की जो काम वो कर रहे हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, वो रुकने चाहिए। जब वो रुक जाएंगे उसके बाद ये सारी चीज अच्छी लगेगी। हमको तो बहुत मजा आता है पाकिस्तान को बीट करने में, बहुत चिल्लाएंगे हम, लेकिन जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है सर, इंडिया पाकिस्तान ऐसे है जैसे इजराइल और हमास है। यहाँ पे हर तरफ खून बिखरा हुआ है, तो जहाँ पर हर तरफ खून बिखरा हो वहाँ पर मैच होने की कोई भी संभावना सोची भी नहीं जानी चाहिए किसी भी सूरत पर। इंडिया के आर्मी के ऑफिसर्स और जवान इतनों ने अपनी शहादत दी है इंडिया की फ्रीडम के लिए, और उसके बाद हम उनके साथ मैच खेलें, ऐसा बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं आप कहते हैं नहीं होना, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए सर। मैं तो सर ये कहूंगा कि मैच होना चाहिए, होना चाहिए। लड़ाई और स्पोर्ट्स को इंटरमिक्स मत करो, स्पोर्ट्स अलग चलती रहेगी, जो हमारी लड़ाई है वो चलती ही रहेगी। सर मैं तो बिल्कुल मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके क्राइटेरिया एक ही होना चाहिए। जैसे अगर मूवीज वगैरह नहीं हो सकती तो मैच क्यों होना चाहिए? सबके लिए क्राइटेरिया एक ही सेम होना चाहिए क्राइटेरिया, इसलिए मैं बिल्कुल मैच नहीं होना चाहिए मैच। हाँ जी, हाँ जी। देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये मैच होना चाहिए। देखा जाए मैच भी एक तरीके से एक जंगी होती है। 11 प्लेयर उधर हैं, 11 प्लेयर इधर हैं, सामने ट्रॉफी पड़ी है, दुनिया तुम्हारे को देख रही है, जिसमें दम है वो ट्रॉफी ले जाओ। अगर ये बात है तो उनका संगीत है जी, पाकिस्तान का संगीत है। नुसरत फतेह अली खान साहब कितने पॉपुलर हुए हैं, और पता नहीं कितने हमारे हिंदुस्तान के सिंगरों ने उनके गाने गा गा के अपनी रोजी रोटी कमाई है। इस हिसाब से तो फिर अपना संगीत भी नहीं होना चाहिए आपस में कि हम एक दूसरे का संगीत नहीं सुनेंगे। हजारों सरहदों की बेड़ियां हैं मेरे पाँव में, है खुदा तू मेरे पाँव को पर लगा देता तो अच्छा था, कभी रोका नहीं रास्ता परिंदों ने परिंदों का, तो इस दुनिया को चिड़िया घर बना देता तो अच्छा। यानी आपके ख्याल से होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी, होना चाहिए। आज जंग एक लगा है, होना चाहिए। होना चाहिए मैम। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। जो हालात चल रहे हैं आजकल दोनों कंट्रीज के बीच, इतने लोग हमारे मर रहे हैं, इनोसेंट लोग मर रहे हैं, तो ये उनको सोचना चाहिए। मैच इज नॉट इम्पोर्टेंट, कंट्री इज इम्पोर्टेंट, कंट्री कम्स फर्स्ट। नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि जो आपने पीछे भी देखा था युद्ध में क्या क्या हालात हुए थे, और स्पेशली पंजाब में आपने देखा बॉर्डर एरिया पे क्या क्या चल रहा था, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी नहीं होना चाहिए। जब कंट्रीज दोनों एग्री होती है उस टाइम बेटर रहता है। यानी कि नहीं होना चाहिए सर? मैं बिल्कुल सख्त विरोध करता हूँ, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए क्योंकि क्रिकेट में कॉमर्स इन्वॉल्व है, और जब हम मान चुके हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, और हम आज से नहीं देख रहे हैं, कई सदियों से देख रहे हैं
वो अपनी दुश्मनी निभा रहा है, तो हमें हर तरफ से विरोध करना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई कॉमर्स उनके साथ में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स हो, कोई भी एक्टिविटी हो, पाकिस्तान के साथ हमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। नहीं होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप गेम, ये जो गेम है ये किस लिए है कि एक देश का दूसरे देश के साथ में अच्छा रिलेशन बने, है ना, और दूसरा उससे फाइनेंशियली फायदा भी होता है दोनों देशों को। तो हम इनडायरेक्टली पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म के लिए, कि हमारे जो पैसे जा रहे हैं, जो मैच होगा उसको फाइनेंशियली भी फायदा होगा, पाकिस्तान को भी फायदा होगा। वो कहाँ पे जाएगा पैसा? टेररिज्म के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात कही इन्होंने, आप कह रहे होना चाहिए, ठीक है सोनू जी सर, आप भी कह रहे होना चाहिए। अब इन्होंने जो बात कही है कि टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, मोस्टली जो कह सकते हैं कि यूनिटी है वो कैरी नहीं होना चाहिए, आप कह रहे होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो ठीक है, इनकी बात में भी दम है, पर स्पोर्ट्स को और लड़ाई को हम इंटरमिक्स ना करें। स्पोर्ट्स अलग चलने दें और जो हमारा उनके साथ वो चलता रहेगा, बातचीत चलती रहने दो। ये बातचीत चलती रहने दो सर। नहीं, बिल्कुल पहले शुरू से मैं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स पे खाली क्यों, मूवीज और सारा कुछ होना चाहिए ना उसके अंदर, फिर हर चीज का क्राइटेरिया सेम होना चाहिए करने का। तो फिर सर, इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। रीजन ये है सर, देखो प्लेयर्स हैं, प्लेयर शेड्यूल भी जो प्लेयर्स होते हैं उनको पॉलिटिक्स से बाहर रखना चाहिए, एंड सब मोड ऑफ एंटरटेनमेंट का हक सबको है, ठीक है ना। और मोर ओवर स्पोर्ट्स इज सेपरेट एंड पॉलिटिक्स इज सेपरेट, ठीक है ना मैडम, स्पोर्ट्स इज सेपरेट एंड पॉलिटिक्स इज सेपरेट, बट कंट्री कम्स फर्स्ट फॉर मी। और वो सिर्फ स्पोर्ट्स इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं जिससे हमें कम फायदा होता है, पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होता है और उनको पैसा कमाने का मौका मिलता है, तो वो पैसा हमारे ही अगेंस्ट यूज होता है। सर नहीं, अगर कंट्री प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो शी इज राइट, ठीक है, बट अगेन आई विल से कि इन बिकॉज आई वाज अ स्पोर्ट्समैन, सो इन ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आई कंसिडर कि हाँ कि देखो, बीइंग अ प्लेयर दे शैल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी और वहां पे भी गेम प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, वो बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान को देयर शैल बी नो लाइक इकोनॉमिकल बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट आवर कंट्री, ठीक है। बट अगर एक प्रॉपर टूर्नामेंट हो रहा है, देयर वी शैल पार्टिसिपेट विद पाकिस्तान। देखो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, तो उसमें 14 टीमें होती हैं। अब अगर हम ये कहें कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, मान लो अगर फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान ही आ गई हैं, हम यहाँ से ट्रॉल कर रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, तो वो जो होगा वर्ल्ड कप वो कौन लेके जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी कि इनका कहना है कि वर्ल्ड कप तो इंडिया को लेके आना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए, बट मैं स्टिल अब यही कहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होना चाहिए, मेरा व्यू चाहिए। सर क्या कहेंगे? सर, इजराइल और हमास दो कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के, रोज खून बिखर रहा है वहां पर बॉर्डर पर, उनके एक दूसरे के इंडिपेंडेंस पे सवाल उठ रहा है। ऐसे में कैसे खेल सकते हैं? वर्ल्ड कप तो दूर, वो तो किसी भी फोरम पे इकट्ठे नहीं हो सकते इंडिया और पाकिस्तान। दे शुड बी टोटली अवे फ्रॉम ईच अदर टिल अ फाइनल सोल्यूशन इज। क्योंकि एज ए स्पोर्ट्समैन जैसे आपने बात कही, और कई इसमें नेगेटिव हैं, लेकिन हालात जो इस टाइम चल रहे हैं, मोस्टली लोग जो हैं वो कह रहे नहीं होना चाहिए। सर सी देखो, अगर इंडिया बैक ऑफ करती है किसी सिचुएशन से, तो क्या वो इंडिया को बैक, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमने किसी चीज से बैक ऑफ कर लिया किसी सिचुएशन से। अगर हमें किसी को हराना है, वी नो दैट वी कैन, वो भी एक हमारे पास एक स्तर है ना कि हम उसे वहां भी बीट कर सकते हैं। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को मत देखिए, ये देखिए ना कि हर जगह हमें जीतना है, और अगर हम वहां से बैक ऑफ करते हैं, दे हैन अपॉर्चुनिटी से कि हाँ यहाँ से ये लोग बैक ऑफ कर गए, तो हमें उस चीज में भी उनको हराना है। वहां तो हम उनको हरा ही रहे हैं, बॉर्डर पे तो हरा ही रहे हैं, ठीक है। मैम क्या कहेंगे? नहीं, ये भी सही है अपनी जगह पे कि बॉर्डर पे तो हम उनको हरा ही रहे हैं, उनको कोई चांस नहीं है जीतने का। लेकिन मुझे ये लगता है कि हम मौका दे रहे हैं उनको वापस हमारे चीजों से फायदा उठाने का, और उनकी जो मेंटालिटी है, उनकी जो सोच है, वो सिर्फ वही देखते हैं कि जो भी कुछ आ रहा है वो सारा हमारे ही खिलाफ यूज हो रहा है, टेररिज्म के लिए। तो अभी जो मेन मुद्दा है वो टेररिज्म पे है, जिसमें हमारी इनोसेंट फैमिलीज मर रही हैं। किसी के हस्बैंड को मार दिया गया, किसी के बच्चे को मार दिया गया उनकी आंखों के सामने। सो आई एम टोटली अगेंस्ट इट, राइट? सर क्या कहेंगे? सर होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारण यही है, देखो जी हमारे पुलवामा में कितना नुकसान हुआ, क्या चीज करके गए हैं और क्या हुआ है, देखो आप भी खुद। और ये होना ही नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे साथ जितना नुकसान किया हमारा तो किसी ने नहीं किया। इनफैक्ट ऑल द कंट्रीज शुड बाइकआउट पाकिस्तान। ऑल कंट्री सर बाइकआउट, बिल्कुल, ऑल कंट्री शुड बाइकआउट पाकिस्तान। इसमें एक और चीज भी है, अगर इंडिया में मैच होता है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान से लोग आएंगे यहाँ पे, उसमें अगर कोई टेररिस्ट आ गए तो साथ में, तब क्या करोगे?
मैच अपनी जगह पे है, पर उसमें भी कोई आ सकता है ना, फेक आईडी बना के कुछ भी आ सकता है, फिर क्या होगा? सर बहुत चीजें हैं, आप भी फेवर कर रहे हैं, सोनू शेट्टी जी भी कह रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? सबके आप व्यूज तो सुन ही रहे हैं। मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ, रहूंगा भी। तो मेरे हिसाब से स्पोर्ट्समैनशिप यही कहती है कि मैच जरूर होना चाहिए, बाकी वो जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो चलते ही रहेंगे। हाँ, उसका इससे मत लिंक नहीं होना चाहिए सर, किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। हाँ, सर क्या कहेंगे? देखिए वैसे तो आप पड़ोसी हैं, कहीं उसके लिए ना लड़े, लेकिन जो हमारी लड़ाई नहीं है इस बात पे। आप देखिए, आप तो बड़ा क्लियर है, किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए हाँ जी सर, क्या कहते हैं? होना चाहिए? नहीं, मैच तो होना चाहिए, मैच तो होना बिल्कुल नहीं होना सर, मैच बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। नहीं सर, पक्का होना चाहिए, होना ही होना चाहिए सर। देखिए एक सिंपल सी बात है, अभी जो इन्होंने एक बात बोली है कि कोई अंदर आ जाएगा या बाहर आ जाएगा, इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बना रखी हैं। इवन की जो एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है, उसका वेन्यू चेंज कर देगा अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है फाइनल के अंदर। बट हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें ये नहीं शो करना कि हम बैक ऑफ कर रहे हैं, उनको कोई भी रीजन नहीं देना इस बात का कि हम किसी भी चीज पे बैकफुट पे आ रहे हैं। हर चीज में छाती दिखा के उनको आगे हराना है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि बैकफुट पे नहीं आना चाहता इंडिया, क्या कहोगे मैडम आप तो? बैकफुट पे तो कभी नहीं आएगा इंडिया, और आता भी नहीं है कभी भी। उनको सीधा मुकाबला ही दिया जाता है हमेशा, और वो हमेशा मुकाबला उन्होंने हारा ही है, जीते तो बहुत ही कम है वो, चाहे वो मैच हो, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे जो भी हो। लेकिन अभी जो हालात हैं, मुझे तो ये लगता है पूरे विश्व को उनको बाइकआउट करना चाहिए पाकिस्तान को, जहां उनकी सिचुएशन अभी है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और भी कई सर जैसे आप अभी बैकआउट करते हो पाकिस्तान को, तो उसकी अवाम भी समझेगी कि हमारी क्या वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में। बेसिकली जब उनको बैकआउट मिलेगा तो उन अपनी स्थिति अवाम तो सुधारेगी, गवर्नमेंट नहीं सुधारी, लेकिन अवाम तो उसको सुधारने की उनको एक सबक सर, अनलाइक अदर स्पोर्ट्स, क्रिकेट यू ऑल नो इट्स हाईली कमर्शियलाइज्ड गेम, एंड हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके के कॉमर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और क्रिकेट हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जो है इसमें पैसा बढ़ता है, किस तरीके से बैटिंग होती है, सबको मालूम है, पूरे विश्व में मालूम है। और आज जब मैच होगा, आप देखो करोड़ों की बैटिंग होती है, पूरे विश्व को मालूम है, और हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो जी, सीधी सी बात है, आपके घर में कोई चोर आएगा, आप सब खेलोगे तो नहीं ना, उसका बॉयकॉट ही करोगे। ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਨ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾत करते हैं। पंडित जी, क्योंकि आज मैच होने वाला है और लोगों की क्योंकि भावनाएं भी जुड़ी हैं, आप लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, हम देख रहे झंडे लेकर, आज मैच होना चाहिए या नहीं? पहले तो मैं न्यूज 18 के सभी दर्शकों को गौरी शंकर सेवा दल गौशाला की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। पितर श्राद्ध चल रहे हैं, आज 14 सितंबर का दिन है। आज विशेष दिन ये भी है, आज हमारा हिंदी भाषा जो दिन है वो भी आज मनाया जाता है। और आज सभी जो देशवासी हैं उनके मनों में एक आक्रोश भी है, जैसे कि हमारा पाकिस्तान के पहले हमारा सिंदूर हुआ है, तो आज भी सभी कह रहे हैं अभी पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए। अगर यदि हो तो कुछ ऐसी शर्तें हों कि उसमें उनको एक निर्देश दिया जाए कि वो गलत हैं, तो उसका जो सीधा सीधा एक मैसेज देना होगा भारतीय वासियों को, पाकिस्तान को, कि मैच ना हो। बिल्कुल जी, जैसे आप देख सकते हैं कि गौरी शंकर सेवा दल वहाँ भंडारा लगाता है अमरनाथ में, और जो ये सिंदूर ऑपरेशन या जो भी इतना इन्होंने जघन्य अपराध किया था वो पहलगाम मार्ग के ऊपर ही किया था, जहाँ से यात्रा आरंभ होती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा जो है, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि पानी और खून इकट्ठा नहीं बहना चाहिए, नदियां नहीं बहनी चाहिए, और यहाँ पर हम एक साथ मैच कर रहे हैं तो उसका पुरजोर विरोध जो है वो दर्ज करवाया जाता है कि ये जो मैच है वो नहीं होना चाहिए, कि हमारे जवानों के ऊपर वो गोलियां चलाते हैं और हमारे प्लेयर उनके साथ खेल रहे हैं। तो और पूरा विश्व है जी, किसी के साथ भी मैच खेलो, जिसके साथ हमारी नहीं बनती है उसके साथ हमें मैच नहीं करना चाहिए। और ये ज्यादातर देशवासियों का यही मानना है कि ये मैच नहीं होना चाहिए, ये गलत है।
और हमारे जितने लोग वहां पर अभी ऑपरेशन सिंदूर हमने झेला है, पूरी कंट्री ने दिक्कतें झेली हैं और ज्यादातर हम इस इलाके में रहते हैं, पंजाब हरियाणा सबसे ज्यादा इन चीजों को बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ है। किस तरह से देखते हैं एज अ यंगस्टर? जो कंट्री टेररिज्म को प्रमोट करती हो उसके साथ इंडिया में अगर ये मैच होना गलत मानता हूँ मैं। गलत है, यानी कि नहीं होना चाहिए। सर ये मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारे अभी अभी जख्म नए हैं। अभी जो 26 लोग हमारे मारे हैं, उन्होंने धर्म पूछ के मारा ना, तो सभी ने देखा है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें कितना लॉस हुआ। जब कंट्री आपस में तो मन मिलते नहीं है, ये मैच कराने से कोई बेनिफिट तो है नहीं। आपस में नहीं मिलती, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मैच नहीं होना चाहिए था। अगर हो भी रहा है तो उसे उनको सोचना चाहिए था, खिलाड़ियों को भी पहले खेलने से पहले, कि हमारे देश के साथ क्या हुआ है और हम क्यों खेल रहे हैं। और वो खिलाड़ी खेल की भावना से खेल रहे हैं तो उनको हरा कर ही आए, दुबई के अंदर हरा के आए, ताकि दोबारा से मैच ही ना हो। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ।